शून्यकाल की जो लिस्टेड सूची है वो ली जाएगी। डॉक्टर बीवी सत्यवती। Speaker sir. Speaker sir, the Anakapalli Jaggery market has been in existence since the 18th century. Anakapalli Jaggery market is the second largest market in India, and it is known for its unique taste, aroma, hygiene, and also it is pure and precisely processed, and it has high nutrition value and long shelf life. Therefore, Speaker sir, getting a geographical indication, GI tag, to Anakapalli Jaggery would add to credibility to Jaggery and improve the livelihood of opportunities to all those who depend on it. Speaker sir, GI would help increase the Jaggery market in India and increase the quantum of Jaggery exports from Anakapalli. The GI tag for the Jaggery will generate demand for the product. Hence, through you, Speaker sir, I request the Ministry of Commerce and Industry to take steps towards issuing a geographical indication tag for Anakapalli Jaggery and help promote and market the product on a global scale. Thank you very much, sir. श्री ढाल सिंह बिसेन। महोदय, अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए, जो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सिंह बिसेन। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी कृषक परिवार की है, परंतु हमारा एक तरह का कहें कि दुर्भाग्य है कि जितनी शिक्षा एजुकेशन हमारा कृषि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए वो नहीं होने के कारण से बच्चों को कृषि शिक्षा में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में संचालित सभी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में कृषि संकाय प्रारंभ किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को कृषि आधारित शिक्षा की प्रारंभिक जानकारी मिल जाए, जिससे जो छात्र कृषि की पढ़ाई ना कर पाते हैं उनके लिए लाभदायक होगा और उन छात्रों के लिए भी लाभप्रद होगा जो कृषि की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे पढ़ना चाहते हैं। इसके साथ ही आपसे आग्रह कि प्रत्येक जिले में कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए ताकि जो युवक कृषि की उच्च शिक्षा ग्रहण करने में अपनी रुचि रखते हैं और वे कृषि की उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, वे छात्र अपने जिले में ही कृषि विषय पर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही प्रत्येक जिले में कृषि महाविद्यालय स्थापित होने से युवक युवती कृषक संबंधी अच्छी शिक्षा लेकर आधुनिक खेती कर स्वयं को एवं देश को खाद्यान्न, फल, तिलहन आदि फसलों को लेकर आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोगी होंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मेरे गृह जिला सिवनी में नवीन कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाने का शासन से अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम कुमार रेड्डी जी। Chairman sir, Honorable Chairman sir, on behalf of the paddy farmers of Telangana, I wish to bring a matter of urgent public importance to the notice of Government of India through you, sir. Sir, right now in the Rabi paddy crop of Telangana, in Telangana state, 35 lakh acres of paddy is now coming up for harvest. The harvest has begun. Sir, very unfortunately, due to the chaos, confusion and incompetence of both the state and central governments, both the central and state governments are trying to escape the responsibility of procurement of paddy of this Rabi crop in Telangana state. Sir, they are both blaming each other. Today, Union Minister Mr. Piyush Goyal gave a statement that they are willing to procure raw rice. Sir, in the Rabi crop in Telangana, in the paddy, what is viable is only the parboiled rice. Sir, I appeal to Government of India to buy both paddy, both raw and parboiled rice, and also the Government of India and the Government of Telangana should explore the possibilities of export of rice, and this present stalemate should be solved, and the paddy farmers of Telangana are in a crisis. The Government of India should step in and procure both
raw rice and parboiled rice immediately, sir. Thank you. श्री आलूवालिया जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक विशेष बात रखना चाहता हूं। जैन मुनि आचार्य महाश्रमण जी जिन्होंने 9 नवंबर 2014 को लाल किले से अहिंसा यात्रा शुरू की और वो पैदल चलते हैं, उनके साथ में करीब 100-150 जैन मुनि साथ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैन मुनि गाड़ियों पर, जहाजों पर नहीं चढ़ते हैं, पैदल चलकर यात्रा करते 18,000 किलोमीटर की यात्रा की। वो बांग्लादेश गए, वो नेपाल गए, म्यांमार तक गए और मेरे को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ जब वो दार्जिलिंग जिले में घुसे। तो मैं करीब लाखों कदम उनके साथ में 24 फरवरी से 1 मार्च और फिर 27 जनवरी से 12 फरवरी तक अपने पिछले लोकसभा केंद्र में उनके साथ वो यात्रा की। और वो एक ऐसी यात्रा जो अहिंसा के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ अहिंसा का प्रचार करते हुए नशा मुक्ति समाज और सौहार्द बढ़ाने के लिए, और कर्म ही तुम्हारी पूजा है, इस चीज को सामने रखकर उन्होंने ये प्रचार प्रसार किया। गर्व महसूस तब होता है जबकि नेपाल में वो गए तो नेपाल सरकार ने उनके नाम का एक डाक टिकट जारी किया। अब 18,000 की यात्रा कंप्लीट करके ये 27 मार्च 2022 को इसका समापन है। मेरी आपके माध्यम से मांग है, आपके माध्यम से सरकार से ये मांग है कि अहिंसा यात्रा के नाम पर कोई बड़ी सड़क मार्ग का नाम, जिन रास्तों से वो गुजरे, उसका नाम रखा जाए और साथ साथ एक डाक टिकट इस अहिंसा यात्रा के नाम पर जारी हो, जो कि पूरे समाज को पता लग सके कि अहिंसा यात्रा और नशा मुक्ति समाज के लिए जैन मुनि आचार्य महाश्रमण जी ने इतने लोगों के साथ जुड़कर ये काम किया है। धन्यवाद सर। श्री आर.के. सिंह पटेल जी। मैं अपने संसदीय क्षेत्र बांदा चित्रकूट बुंदेलखंड के NH 35 जो झांसी से बांदा चित्रकूट और प्रयागराज से मिर्जापुर और बनारस तक ये मार्ग जाता है, इसमें हमारा चित्रकूट का जो प्रमुख हमारा धार्मिक स्थल है, भगवान राम की तपोस्थली है, वहाँ से गुजरता है ये मार्ग। और अतर्रा बीच का जो हमारा एक नगर पालिका टाउन एरिया है और बांदा, तो इनमें बाईपास बनाने के लिए मैंने मांग किया है। और ये माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस मार्ग में ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये भी हमारा इसी मार्ग में चित्रकूट के पहले जाकर के जुड़ता है। तो वहाँ से, जहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जुड़ता है, वहाँ से इसको प्रारंभ करके और ये हमारा मार्ग जो राम वनगमन मार्ग आता है अयोध्या से चित्रकूट तक, उसको क्रॉस करके और करबी बूढ़ा राजापुर को क्रॉस करके ये आगे प्रयागराज की तरफ जाने वाले के मार्ग पर अगर बाईपास चित्रकूट में बना दिया जाए और इसी तरह तर्रा में बाईपास बना दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये चित्रकूट के आने वाले धार्मिक हमारे जो भी पर्यटक हैं उनको सुगमता होगी और जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जाम की स्थिति रहती है चित्रकूट में, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस NH 35 पर जो यहां से ये गुजरता है, तो चित्रकूट में और अतर्रा में बाईपास बनाने जाने की कृपा करें। धन्यवाद। बारदोली जी। Mismatch of healthcare demand and supply, especially the paucity of qualified medical professionals, has been dogging this country for a long time.
fake doctors is a countrywide phenomenon. But I just wanted to mention the WHO report of 2016, when it was pointed out that more than half of the doctors in India practicing allopathy lack medical qualification, almost 57% of the doctors. And the sample registration system survey in 2018 also say that 20% of all deaths during treatment in India had a fake doctor's involvement. So this problem is also very acute in the state of Assam and the northeastern states, especially in our tea plantations. Tea plantation, there is paucity of qualified medical professionals is really phenomenal. And as per the WHO report, 6 of the 30 districts with lowest densities secondary school pass allopathic doctors are in the state of Assam itself. So you could understand that this is the pattern. The government must address the low supply of qualified doctors in the Northeast. I've given few suggestions. I hope the concerned ministry and the government of India would take note of it by improving incentives for qualified doctors to work in these areas, especially in the tea plantation areas of Assam, urgently ensuring a standardized recruitment process for doctors in the tea gardens, timely filling up a post of medical inspectors. There's a post of medical inspectors who are supposed to have supervise all these, but there are a lot of vacancies. So medical inspector plantations to ensure proper oversight. At both the state and national level, it is imperative that the government must track the number of fake doctors and devise preventive measures against the menace that poses grave risk to the individual and public. Thank you. Thank you. Thank you. Shri Jasveer Singh Gill ji. सर, मैं आज यहाँ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। ये मुद्दा एक स्टेट का नहीं है। पंजाब से लेके हरियाणा लेके दिल्ली, आज मैं अपने कुछ साउथ के मित्र दक्षिण से जो भारत से आते हैं उनसे भी बात कर रहा था। ये मुद्दा वहां का भी है। ये मुद्दा है रनवे ब्राइड्स का। सर, आजकल जो लड़कियां आईलेट्स वगैरह क्लियर कर लेती हैं और उनका रिश्ता कर दिया जाता है, एंगेजमेंट कर दी जाती है या शादी कर दी जाती है, जो लड़के वाले होते हैं वो उसकी सारी यूनिवर्सिटी की, फॉरेन यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो देते हैं, लड़की को वहां भेजते हैं। वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती है, उसके बाद उसको पीआर मिल जाती है। जब पीआर मिल जाती है वो लड़कों को अपने पास बुलाते नहीं, स्पॉन्सर नहीं करते, जिससे बड़े घर टूटे हैं। अभी रिसेंटली पंजाब में ऐसे 3 लड़कों ने सुसाइड किया जिनको जो उनकी बीवियां बिल्कुल उनको यहाँ पे भटकता छोड़ गए थे। सर, इसका एक सामाजिक और फाइनेंशियल तो जो नुकसान होता है, एक सोसाइटी में बहुत बड़ा लॉस होता है, लॉस ऑफ फेस, लॉस ऑफ रेपुटेशन, जो बहुत कम लोग सहार पाते हैं। सर, अगर लड़के कुछ ऐसे करते उनके लिए कानून में प्रावधान किया गया है, उनको सजा दी जा सके। मेरी गुजारिश के आपके माध्यम से सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, मिनिस्टर साहब बैठे हैं, कि कृपा करके इसके ऊपर भी एक कानून लाया जाए जो लड़कों का फाइनेंशियल या जो दिमागी साइकोलॉजिकल शोषण होता है इसको रोकने के लिए, इसको समाज में और जो निगरता ना है इसको रोकने के लिए नया श्री सुरेश पुजारी जी। Of Odisha is very rich in mines and minerals. In addition to that, Odisha has huge potential for human resource development. But in spite of huge potential, sir, the state has many underdeveloped areas, particularly the western part of Odisha. Sir, in the very close proximity of world's famous Hirakud Dam, the first engineering college of Odisha was formed, which is in the name of University College of Engineering, Bulla, in the year 1956. And presently, it has been a state unitary technical university named as
Veer Surendra Sai University of Technology since 2009. And it has UGC recognition too, sir. The present student strength of this institution is 5,000 plus, sir. And the top rankers of the state are preferring this particular university for their technical education. It offers 11 undergraduate courses, sir, 34 postgraduate courses, and 16 PhD programs, sir. It has produced 30,000 alumni who are serving the nation and abroad in a responsible way since its inception. The institute is within the vicinity of the industrial belt, mines and other institutions of higher learning like the Samalpur University, the Medical College, the Indian Institute of Management, IIT, NIT, and Agriculture University. It is well connected by road, rail, and air, sir. We have a airport also near the institution. My submission is that, sir, it has scope to become a multidisciplinary engineering research university, MERU, as mandated by the National Education Policy 2020, sir. Many a times we have approached the appropriate authority for upgradation of this institution to CFTI, and Government of Odisha has also recommended that. Through you, sir, I request the Union Minister of Education for upgradation of this institution, Vishyut Burla, to CFTI in the line with the Central Institute of Technology, Kokrajhar in Assam, to act as a catalyst to the socio-economic and overall development of the 17 underdeveloped districts of western part of Odisha. Thank you, sir. कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस सदन का ध्यान आपके माध्यम से बिहार को 4 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि भारतमाला फेज 2 के तहत दिया गया है उसके तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, भारतमाला फेज 2 के अंदर 29,000 करोड़ रुपए जो कि 6 लेन गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई बिहार में 416 किलोमीटर है के लिए आवंटन किया गया है। उसी प्रकार 19,000 करोड़ रुपए बनारसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए तथा 20,000 करोड़ रुपए रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए आवंटन किया गया है और पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 361 करोड़ आवंटन किया गया है महोदय, ताकि एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और व्यापार एवं रोजगार में वृद्धि हो। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री श्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जी से आग्रह करता हूं कि बिहार से गुजरने वाले 4 एक्सप्रेसवे पर काम को तेजी से शुरू करने के लिए आवंटित राशि को यथाशीघ्र रिलीज किया जाए ताकि काम जल्दी शुरू किया जा सके। श्री तेजस्वी सूर्य महोदय। Thank you, Speaker, sir. Sir, I represent the city of Bengaluru, which is one of the most fastest growing economic engines in the country. The Bengaluru airport, sir, is located on the Bengaluru-Hyderabad highway, the place called Devanahalli, which is almost 40 to 50 kilometers distance from the center of the city. And for people of Bengaluru South, commuting and reaching the airport is almost a 3-hour exercise. And also, sir, this airport is one of the busiest airports in the country. Before the COVID pandemic, the airport serviced more than 3 crore passengers in just 1 year. In a way, it is the gateway to the south of India, and the number of international flights is only increasing every day. My request with the Honorable Minister for Civil Aviation, sir, is to start another terminal of the Bengaluru International Airport by reoperationalizing the already existing airport infrastructure at the HAL airport facility, and also perhaps consider opening another terminal in the south of the city like Bidadi, Anekal and this part, which will create another economic center in the city, sir. Sir, currently the policy to open a new airport is that the distance between 2 airports must be more than 120 kilometers. This policy, sir, however, does not consider the density of the traffic in an airport.
Therefore, sir, my request, sir, is under the Honorable Prime Minister's leadership. More than 66 airports have been opened in the country in just the last few years. And even the most common man is today affording air travel, sir. On behalf of people of Bengaluru South and people of Bengaluru, I request the Honorable Minister for Civil Aviation to make necessary changes to this policy to restart the HAL airport or create a new terminal in Biddi or Anikal. Namaste, sir. Thank you. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भारत नेपाल सड़क सीमा परियोजना की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, वर्ष 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने भारत नेपाल सड़क सीमा परियोजना के अंतर्गत 1377 किलोमीटर रोड की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसके तहत 552.9 किलोमीटर रोड का निर्माण बिहार राज्य में होना था। मेरा संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर इस परियोजना का कार्य बहुत ही धीमी गति से हुआ है। भू अर्जन का सुचारू रूप से भुगतान न होना विलंब का मुख्य कारण है। इस सड़क के निर्माण से दोनों देशों के बीच व्यापार और आपसी भाईचारा को बढ़ावा मिलेगा। 11 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी यह परियोजना पूर्ण नहीं हो पाया है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इंडो नेपाल भारत सड़क का निर्माण जनहित में यथाशीघ्र कराया जाए। धन्यवाद। Sir, thank you, sir. I would like to point out here heating issue in my constituency. National Highway 544 Mannuthi Vadakkancheri stretch has a new toll plaza at Panniyangara, and the company began to collect toll since March. It is really unjust that the company collecting high toll and did not permit even local people who depend on this road for their daily routine and hospital cases to pass without toll. The rate fixed for private and school institutions buses are very high comparing to adjacent toll plazas. So private buses and school buses left off their service along this road. Palakkad District Collector summoned an emergency meeting to discuss this issue, and I myself participated in that meeting. The company officials were not ready to solve the existing problem, so the meeting was fertile. Sir, I point out in meeting words of Honorable Highway and Transport Minister Nitin Gadkari ji that there will not be another toll plaza within a distance of 60 kilometers on a highway. But the company officials were not ready to accept this, saying this is not applicable to this highway. Sir, there is another toll plaza at Paliyekara within 35 kilometers on this same highway. Moreover, NHAI and the company did not complete the service road and just opened the tunnel at Kudiran. The company today started their toll collection, again challenging public. It creates turmoil and people are on strike here. So I humbly request government and highway and transport ministry to interfere in this matter and solve grievances peoples. Shri Chedi Paswan ji. संसदीय क्षेत्र सासाराम को धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। धान की उपज तथा चावल की बहुलता एवं इस क्षेत्र के जिला रोहतास, कैमूर के साथ साथ जिला बक्सर तीनों जिला के किसान एवं जनता के सुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 में अथक प्रयास से भारतीय खाद्य निगम का मंडल कार्यालय को सासाराम में स्थापित किया गया। सभापति महोदय, सासाराम मंडल कार्यालय को बक्सर में स्थानांतरित करने का कोई औचित्य ही नहीं है। बताना चाहूँगा कि विभाग के इस निर्णय से रोहतास एवं कैमूर का बाहुल्य इलाका इसके लाभ से वंचित रह जाएगा तथा सरकार को भी काफ़ी आर्थिक क्षति का बोझ उठाना पड़ेगा। जबकि बक्सर में पहले से ही 25,000 एमटी का एफसीआई
का गोदाम अवस्थित है। इसके अलावा बक्सर जिला के प्रमुख मुख्यालय इटाढ़ी में साइलो गोदाम का निर्माण किया जा रहा है। इसके बावजूद भी मंडल कार्यालय सासाराम को बक्सर में स्थानांतरित करना रोहतास एवं कैमूर के साथ घोर अन्याय प्रतीत होता है। अतः सदन के माध्यम से विशेष अनुरोध है कि भारतीय खाद्य निगम के मंडल कार्यालय सासाराम को यथावत रहने दिया जाए। बहुत बहुत कृष्णपाल सिंह यादव जी। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे शून्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। माननीय मेरे लोकसभा क्षेत्र गुना के अशोकनगर जिले में राजघाट बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित इंटर स्टेट बांध है। इस बांध की आधारशिला 1971 में रखी गई थी और इसका निर्माण 1975 में प्रारंभ होकर 2006 में पूरा हो गया था। माननीय यह परियोजना विधिवत रूप से संचालित हो रही है। यह बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित बेतवा नदी पर 375 करोड़ की लागत से बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 43.9 मीटर है। इस बांध का कैचमेंट एरिया 17,000 स्क्वायर किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 90,000 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई इस बांध से होती है। वर्तमान में इस बांध से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के साथ साथ भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने की परियोजना भी स्वीकृत हुई है। माननीय इस बांध से मध्य प्रदेश की पानी की आपूर्ति भी करते हैं। इसके साथ साथ इस बांध से 15 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होता है। परंतु महोदय, इस राजघाट बांध का आज तक लोकार्पण नहीं हुआ है और इसके समीप ग्रेनाइट और पत्थर की खदानों को भी स्वीकृति मिली है, जिसमें कि ब्लास्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है और इसके कारण निरंतर इसे क्षति पहुंचने की आशंका बनी रहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से और जल शक्ति मंत्रालय से ये निवेदन है कि इस परियोजना को जल्द से जल्द विधिवत तरीके से इसका लोकार्पण किया जाए और इस परियोजना का ताकि बुंदेलखंड की और इस क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके और उस क्षेत्र की जनता की और मेरी मांग है कि इस बांध का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई परियोजना रखा जाए। माननीय पटेल, ये एक राष्ट्रीय धरोहर है और इसके विकास और निरंतर रखरखाव से दोनों प्रदेश के हर घर को लाभ मिलेगा। और माननीय चंदेरी पर्यटन नगरी भी इसके समीप है, तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और मेरे क्षेत्र की जनता को रोजगार भी उपलब्ध होगा। श्रीमती शारदाबेन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में जो चौमुखी विकास देश में हो रहा है, उसमें देश के पर्यटन स्थलों और क्षेत्रों पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बौद्ध और विरासत परिपथ का निर्माण पर्यटन विकास में नए आयाम जोड़ रहा है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना में जहां लोक आस्था से जुड़ा बैचराजी धाम है, इसके अलावा मेहसाना का मोढेरा लगभग 900 साल पुराने सूर्य मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ तारंगा, मोढेरा, पाटन, शंखेश्वर और महुड़ी जैन मंदिरों के लिए लोकप्रिय है। जिले का ऐतिहासिक नगर वडनगर हाटकेश्वर महादेव मंदिर के लिए चर्चित है। थोल वन्यजीव अभयारण्य अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर स्थित अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल है। जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविध प्रजातियां यहाँ देखी जा सकती है। मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि मेहसाना में विरासत परिपथ बनाया जाए, जिससे यहाँ के पर्यटन को और भी अधिक बढ़ावा मिल सके। धन्यवाद। श्री कंदन जी। Respected sir, the price increase made now on cooking gas, petrol and diesel forced the life of the people miserable, unaffordable and beyond their reach. The price on cooking gas has attained a historic level. The prices were untouched for the last 4.5 months, keeping in view the just concluded assembly election. The people are struggling to meet both the ends. The continued price increase on these petroleum products is an injustice act towards poor people. Therefore, it is urged that the anti-people and anti-poor steps of the government be stopped
and the increased price on cooking gas and fuel be withdrawn urgently. Thank you, sir. श्रीमती अपरूपा पोद्दार जी. Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak in 0 hour, sir. Sir, approximately 2.2 million people in West Bengal are directly associated with biri making industry, and 90% of the population is, and 95% of the total population of the state in other states. Sir, 65-bedded Tarapur Central Labour Hospital in Jangipur was set up by the Union Ministry of Labour in 2000, and it was inaugurated by our former President Pranab Mukherjee ji. It was built in 40-acre land, sir, and possesses about 50 beds. Gynecology and pediatric unit were there, 7 doctors were there. There were operation theatre, laboratory, etc. All machineries were there. And after that, later 2003, from 52 or 15 more beds were added, and the biri workers and their families were able to avail treatment free of cost against their identity card issued by the Ministry of Labour, sir. But day by day, the condition of the hospital deteriorated, and still now only 2 doctors are left, and the people and the biri workers who were availing treatment in this hospital, particularly in this hospital, they are not getting any good treatment over there, and for that reason they have to go to the state hospitals, which is 30 kilometers away from Jangipur, and which is subdivisional hospital there, and Malda Medical Hospital, which is 40 kilometers away. So they have to travel a very... Okay, make your request. So, sir, I urge the ministry through from your end that to grant funds for the revival of the ESI hospital and upgrade it to super facility hospital for the benefit of the biri worker who have a contribution to the rural economy of West Bengal. Thank you, sir. श्रीमती रीति पाठक. धन्यवाद सभापति महोदय. सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से निवेदन है और उनके समक्ष मैं अपना विषय पहुंचाना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी की वर्षों से लंबित सड़क परियोजना सीधी सिंगरौली सड़क जो राष्ट्रीय राजमार्ग 39 कहलाती है, उसका कार्य जो माननीय मंत्री जी ने इसमें विशेष रुचि ली थी और बहुत ज्यादा एफर्ट रहा था उनका, अभी तीव्रता से प्रारंभ हो गई. इसके लिए मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं. लेकिन धन्यवाद के साथ मैं आग्रह भी करना चाहती हूं कि सिंगरौली जिला हमारा औद्योगिक इकाई वाला जिला है और यहाँ पर लगातार भारी वाहन, जो वाणिज्यिक वाहन होते हैं, उनका आवागमन बना रहता है और अत्यधिक आवागमन होने के कारण ये जो रीवा रांची रोड है हमारा, जो NH39 ही कहलाता है, इसका 4 लेन होना अध्यक्ष महोदय पर्याप्त नहीं है. इसलिए यदि मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि यदि इस बजट में रीवा रांची रोड को 6 लेन के निर्माण हेतु सम्मिलित कर लिया जाता है तो मेरे पिछड़े संसदीय क्षेत्र सीधी के विकास की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा. सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अंत में इतना ही अनुरोध है कि रीवा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति अगर 6 लेन हेतु प्रदान कर दी जाती है तो इस राजमार्ग के बृहदीकरण से न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र अपितु 3 राज्यों के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों को विकास की गति मिलेगी. श्री मुकेश राजपूत जी. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय. मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन राज्य मंत्री जी से का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि सड़क परिवहन मंत्रालय की अनुदान मांगों के समय पर सभी सांसदों के द्वारा एक स्वर से माननीय मंत्री जी का, सभी सांसदों के द्वारा माननीय मंत्री जी का सभी ने आभार व्यक्त किया
मैं इसी के साथ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2017 में यूपी स्टेट हाईवे 29 को नेशनल हाईवे 730 में 730C में परिवर्तित किया था। इसके बाद 2018 में इसकी DPR भी बन गई, परंतु आज तक नेशनल हाईवे 730C का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। ये नेशनल हाईवे बहुत ही जीर्ण है। स्थिति हमारे यहाँ ये है कि सड़क जो हाईवे है वो गड्ढे में तब्दील हो गया, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 730C को अविलंब बनवाने की कृपा करें, तथा मेरा एक सुझाव और है माननीय मंत्री जी से कि ग्वालियर भिंड इटावा बेवर तक NH90 को बेवर फर्रुखाबाद टनकपुर तक NH 730C को जोड़कर एक सामरिक महत्व के इस नेशनल हाईवे को एक एक्सप्रेसवे के रूप में बनवाने का कष्ट करें, जिससे भारतवर्ष की बड़ी बड़ी सैनिक छावनियां एक ही मार्ग पर होंगी, जिससे कि हम चाइना बॉर्डर तक आसानी से पहुंच सकेंगे तथा भारत को दक्षिण भारत से उत्तरी भारत को जोड़ने का एक नया एक्सप्रेसवे भी मिल जाएगा। ये एक्सप्रेसवे लगभग 400 किलोमीटर लंबा होगा तथा ये भारत के प्रमुख एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। श्री राहुल कसमा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मेरी लोकसभा क्षेत्र और राजस्थान के युवाओं की बहुत बड़ी चिंता है, जिसके बारे में मुद्दा उठाना चाहता हूं। बीते हुए 2 साल से कोरोना काल के कारण आर्मी की भर्ती राजस्थान के अंदर हुई नहीं है। मेरी लोकसभा क्षेत्र शेखावटी बेल्ट का हिस्सा है, जिसमें बहुत से हमारे युवा साथी देश की सेना के अंदर कार्य करते हैं और देश के लिए जान देने का भी काम करते हैं। लोकसभा क्षेत्र चूरू, गंगानगर हमारा है, हनुमानगढ़ है, जालोर, सिरोही, सभी ऐसे जिले हैं जहां पे पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई। मेरे आपसे अध्यक्ष ये कहना है कि 2 साल से भर्ती होने के कारण कई बच्चों की एज भी ओवर हो रही है। मैं आपके मार्फत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बच्चों की एज का जो फर्क आएगा उनको रिलैक्सेशन देना चाहिए, और साथ ही साथ में जो अनिश्चितता है कि भर्ती कब होगी, क्योंकि युवाओं का समय जाता जा रहा है, 2 साल हो गए हैं और आने वाले समय में भी अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार कम से कम एक 2 साल 4 साल का गैप दे। कोई बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, कोई क्लियरिटी नहीं हो पाती, और आज भी सर क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। 2 साल से पूरे राजस्थान में भर्ती बंद पड़ी हुई आर्मी की, उन बच्चों को भर्ती कराने का आप एक मौका सरकार दे, मेरा आपसे यही निवेदन है। मैं सूची से बाहर के नाम ले रहा हूं, कृपया 1 मिनट में बात रखें जिससे अधिकतम माननीय सांसदों को अवसर मिल सके। श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करूं या पूरे प्रदेश की बात करूं, आज जिस गरीब आदमी के पास PM आवास की योजना नहीं मिल पा रही, उसका मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, लगभग 30 से 40% लोग राजस्थान की ढाणियों में बसते हैं, और जो लोग ढाणियों में बसते हैं वो या तो सवाई चक की जमीन में बसे हुए हैं या चरागाह की जमीन में बसे हुए हैं, लेकिन उनके पास पट्टा नहीं है। पट्टे देने की पावर सवाई चक की जमीन की तो कलेक्टर को है और चरागाह की पावर प्रदेश सरकार को है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आज तक न तो कोई सवाई चक जमीन में किसी कलेक्टर ने पट्टा दिया और न ही कोई चरागाह की फाइल प्रदेश गवर्नमेंट को भेजी। इसलिए आज 30 से 40% लोग बिना PM आवास के कच्चे मकानों में रह रहे हैं। प्रदेश सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था प्रशासन गांव के संग, लेकिन उसमें सिर्फ जो लोग आबादी में बसे हुए थे और पक्के मकान थे उनको पट्टे दिए, ना कि उस गरीब आदमी को मिला। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री की जो सपना है कि गरीब आदमी को मकान मिलना चाहिए, इसके लिए दोबारा से अध्यक्ष महोदय इसके दोबारा से सर्वे किए जाए। और Thank you very much, sir, for allowing me to raise an important issue here. So marriage is a crucial institution in the society, reinforcing several societal structures, not all of which are based on equality. Several models of marriages have been adopted by communities from time immemorial, but way back 50 years ago, the most revolutionary, iconic leader of self-respect movement, Thandai Periyar, has advocated self-respect marriages
juxtaposed against the Hindu marriages which were solemnized by a priest in the Sanskrit language, because it is an alternative feminist, providing a feminist dialogue, giving equality between man and woman. Marriage is made in heaven, they say, but Periyar insisted that marriages should be decided both by a man and a woman, which is enshrined as a fundamental right in the Constitution. So Tamil Nadu was the first government to make it as a legalized one. And the credit goes to our founder-leader Peraringer Anna. What I would urge here is to consider the union government to make please. Dravidian modern marriages to become a legalized one throughout the country. 1 minute, जी. अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से काला नमक चावल जो गौतम बुद्ध के कार्यकाल में वो एक बुद्ध के प्रसाद के रूप में भगवान गौतम बुद्ध दिया करते थे, और आज वो काला नमक चावल न केवल उसकी मांग उत्तर प्रदेश या देश में है, बल्कि उसकी मांग अब सिंगापुर में, नेपाल में, और यहाँ तक कि उसको अमेजॉन अपने डिपार्टमेंट स्टोर ने भी ले लिया है। और आज उस चावल में न्यूट्रिशन वैल्यू बासमती से ज़्यादा है, पानी भी कम लगता है, और इससे किसानों की आय भी दुगनी हो सकती है, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि बासमती से भी ज़्यादा इसकी कीमत है। इस चावल में महक है, इस चावल में न्यूट्रिशन वैल्यू है। और पिछले साल 20 टन इसका सिंगापुर में हुआ था एक्सपोर्ट, और इसी तरह से इस साल 30 टन हुआ और नेपाल में भी गया और डिपार्टमेंटल स्टोर पे भी गया। तो आज उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में लिया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और वाणिज्य मंत्रालय से चाहता हूं और कृषि मंत्रालय से कि ये जो काला नमक की पैदावार नेपाल की तलहटी में है, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर या श्रावस्ती, बहराइच, इसको एक एग्री सपोर्ट जोन बनाने की जरूर निर्णय ले भारत सरकार, और इसमें ये सपोर्ट दिया जाना चाहिए। धन्यवाद सर। जी चेयरमैन साहब, धन्यवाद, थैंक यू। हम तो थोड़ा 2 मिनट में बात बताएंगे आपको भीतर से। सर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कुछ बोलना चाहते हैं, इसलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पोर्ट्समैन, उसीलिए हम हमारे लिए नहीं, सब इंडिया का जो स्पोर्ट्समैन है वो लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए, वो लोग सपोर्ट मिलते भी, बहुत गरीब है। सर, फर्स्ट पॉइंट है जो ओलंपिक जो गए सबको हम लोग इधर से, हमारा गवर्नमेंट से पेंशन देते हैं। सर, पेंशन इतना कमती सर, 1000-2000 में खाना नहीं मिलते। सर, हमारा रिक्वेस्ट है करीब 20,000 दे दो, कोई तकलीफ नहीं, जरूरत पड़े एमपी का पैसा लेके दे दो हम लोग को, 20,000 दे दिए, खाना नहीं मिलते लोग, इतना तकलीफ में है ओलंपियंस लोग। अनदर थिंग इज देयर सर, जो अभी ओलंपियन लोग अभी छोड़ के पैसा खाने का नहीं, थोड़ा कुछ नहीं है, आप लोग मिनिस्टर सब करिए। सेकेंड पॉइंट सर, लास्ट जो अर्जुन अवार्ड मिले पूरा भारत में स्पोर्ट्स में अर्जुन अवार्ड मिले, तो वो लोग ट्रेन का एक पास मिलते थे सर, ट्रेन का एक पास दोनों का, हस्बैंड वाइफ का पास किसी का, वो बंद हो गया। तो गरीब आदमी, थोड़ा ऑल प्लेयर बहुत गरीब है पुराना सर, हमारा विनती है, हमारा लिए नहीं, ये जरूर आप लोग करके दीजिए। धन्यवाद। श्री सीपी जोशी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपसे विषय परिवर्तन की भी अनुमति चाहूंगा। राजस्थान में जिस प्रकार से महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, उस प्रकार से धर्म को कुचलना का भी काम राजस्थान की सरकार कर रही है। मेरे चित्तौड़गढ़ जिले में एक शिवजी का और हनुमान जी का मंदिर तोड़ा गया। सालासर में हनुमान दरबार, हमारे राम दरबार का गेट द्वार तोड़ा गया, और अभी भीलवाड़ा जिले में देवनान मंदिर, जिनको गो पूजक के रूप में माना जाता है, सभापति महोदय मेरे आपसे विनती है कि भीलवाड़ा जिले में वो देवनान मंदिर है, उसको तुष्टीकरण की नीति के कारण वहां द्वार नहीं खोले जा रहे, और तुष्टीकरण की नीति वहां की सरकार अपना रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांगे कि वहां धर्म को कुचलने वाली सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, और जिस प्रकार से वो द्वार बंद है उनको द्वार को खोलने की अनुमति प्रदान कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। Sir, in 2014, Sanskrit was introduced in the Kendriya Vidyalaya school curriculum, and it was made compulsory instead of optional subject. And now
the regional languages are not taught in the Kendriya Vidyalaya schools, and the rules say that when a minimum of 20 students opt for the language, temporary teachers will be appointed to teach the regional language in Kendriya Vidyalaya schools, and there is no assessment also. So I request the government to ensure that regional languages are made compulsory and taught in Kendriya Vidyalaya schools, because the government supports the Kendriya Vidyalaya schools. Thank you, sir. महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र करनाल के जो रेलवे स्टेशन है, मैं माननीय रेलवे मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये 130 साल पुराना स्टेशन है और राष्ट्रीय धरोहर भी इसको बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसको जंक्शन नहीं बनाया गया, जिसके कारण आधे से ज्यादा ट्रेनें, लगभग 125 ट्रेनें चलती हैं। दिल्ली चंडीगढ़ का सबसे व्यस्त रेल मार्ग है ये, लेकिन आधे से ज्यादा ट्रेनें यहाँ पर रुकती नहीं है। आपके माध्यम से ये मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसको जंक्शन का दर्जा दिया जाए ताकि यहाँ ट्रेनें रुकें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसी के साथ ही रेलवे से जुड़ा हुआ है कि करनाल यमुनानगर की एक लाइन हमारी पास हुई थी, पीछे उन्होंने बोला कि 3-4 सालों में ये बन जाएगी, उसका कोई ऑब्जेक्शन लगाकर काम को डिले किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि उसको भी जल्द शुरुआत की। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब भाखड़ा नंगल डैम का निर्माण हुआ था तो पंजाब एक सूबा हुआ करता था। उस डैम का एक हिस्सा नंगल मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और दूसरा अनुराग ठाकुर जी के संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। 1967 में जब पंजाब का विभाजन हुआ तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया। जो सेक्शन 79(5) है इस कानून का, इस भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को चलाने का पैसा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कुछ पैसा हिमाचल प्रदेश देता है। इस प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा फायदा आज भी पंजाब और हरियाणा को होता है और औपचारिकता रही है 1967 से कि जो मेंबर पावर है वो पंजाब से रहते हैं और मेंबर इरिगेशन है वो हरियाणा से रहते हैं। अभी सरकार ने नए रूल्स नोटिफाई किए हैं और इन रूल्स में ये जो डिफैक्टो पोजीशन है उसको डी जूरे नहीं किया गया। तो मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो नए रूल्स नोटिफाई किए गए हैं पंजाब से डिस्क्रिमिनेट करते हैं और इन रूल्स को वापस लिया जाना चाहिए, इन पर दोबारा पुनर्विचार करने की जरूरत है। श्री अबू ताहिर खान जी प्लीज। ধন্যবাদ স্যার। সভাপতি মহোদয়, প্রায় 5 বছর যাবত ভারত সরকারের যে বিএডিপি এলাকা উন্নয়নের টাকা সেটা পাওয়া যায়নি। দীর্ঘদিন সেই রাস্তাগুলোর অত্যন্ত বেহাল অবস্থা। পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকা, বাংলাদেশ যে সীমান্তবর্তী এলাকা, সেই সীমান্তবর্তী এলাকার আমার কনস্টিটুয়েন্সি মুর্শিদাবাদ প্রায় 120 কিলোমিটার রাস্তা অত্যন্ত বেহাল অবস্থা। সেই রাস্তাগুলো চলার উপযুক্ত নেই এবং যে ব্রিজগুলো ছিল সেগুলোর অবস্থাও অত্যন্ত করুণ এবং অত্যন্ত খারাপ। আপনার মাধ্যমে ভারত সরকারের বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে দাবি করছি যে বিএডিপি এলাকা উন্নয়নের যে টাকা সেই টাকায় অন্তত বিগত 5 বছর এই এলাকা উন্নয়নে কোনো কাজ হয়নি, রাস্তাগুলো অত্যন্ত খারাপ। তাই অতি সত্বর দ্রুততার সঙ্গে টাকা মঞ্জুর করে সেই এলাকার 120 কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা, সেটা জলঙ্গি, রানীনগর বিস্তীর্ণ এলাকা, ভগবানগোলা, করিমপুর, নদিয়ার সীমান্ত এলাকা এবং বিশেষ করে বিএসএফদের যাতায়াতের অত্যন্ত দুরবস্থা হচ্ছে। সুতরাং অতি সত্বর এই রাস্তাগুলো মেরামত করা হোক এবং নতুন নতুন যে রাস্তাগুলো আছে সেগুলো মঞ্জুর করার জন্য দাবি রাখছি। सभा की कार्यवाही शुक्रवार 25 मार्च 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।